عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے. حضرات، ہم نے خطبہ مسمونہ میں جو قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے یہ بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو نازل کیا. اور یہ قرآن اپنے اندر بہت ساری کشش رکھتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا مانگے کہ اے اللہ، قرآن تو اتارا ہے تو نے میرے اوپر، لیکن اے اللہ اس کے سمجھ اور بوجھ عبداللہ ابن عباس کو دے دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر قرآن بنے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مجلس شورا بلاتے تھے، بڑے بڑے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ آتے تھے، تو ان کے سامنے عبداللہ ابن عباس کو بھی بلایا جاتا تھا. تو بڑے بڑے لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ اے امیر المومنین، ہم اتنے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے حکمراں یہاں موجود ہیں، اور آپ ہم لوگوں کے درمیان ہمارے بیچ اس نابالغ بچے کو کیوں بیٹھاتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں عبداللہ ابن عباس کا امتحان لینا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن عباس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس، سورہ نصر سے مراد کیا ہے؟ سورہ نصر کے مطلب کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس فوراً پلٹے اور کہتے ہیں امیر المومنین، سورہ نصر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا خبر دیا جا رہا ہے اس میں. حضرت عمر فاروق فوراً پلٹے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اس سورہ سے یہی معنی سمجھتے ہیں، یہی مطلب سمجھتے ہیں. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسان، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس نے قرآن کریم کے تمام نقصوں کو جلا دیا، اور جلانے کے بعد اسے دریا میں بہا دیا، اس کے راکھ کو. پھر بادشاہ جب گشت کرنے نکلتا ہے تو دیکھتا ہے ایک جھوپڑی سے آواز آ رہی ہے. ایک چھوٹا بچہ، 7 سال کا بچہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. کہ وزیر دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا معمولی بچہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. تو بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا کہ اے بیٹا، میں نے سنا ہوں کہ اس جگہ کا بادشاہ، اس جگہ کا حکمراں قرآن مجید کے تمام نقصوں کو جلا دیا ہے، اور یہ تم کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ ارے کوئی
जाकर उस बादशाह से कह दे कि तुमने कुरान को, उस कुरान को जलाया है जो कागज के टुकड़ों पे लिखा हुआ था, और जो मेरे सीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस कुरान को महफूज कर दिया है, उसे बादशाह तो क्या, बादशाह का बाप भी नहीं मिटा पाएगा। सुबह हुई, बादशाह ने कहा, मुसलमानों तुम अपने कुरान के जितना छाप सकते हो छाप लो। जो कुरान एक 7 साल के बच्चे के सीने में महफूज है, उसे मैं क्या पूरी कायनात अगर मिल जाए तो उसे कोई भी शख्स मिटा नहीं सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान इल्मे दीन हासिल कर ले और अपने पेशे नजर सिर्फ ये बात रखे कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के मसनद पर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बात करना, चापलूस आलिम नहीं कि लोगों का मुंह देखकर मसला बताए, वो इंसान बने जो अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह जैसा आलिम बनकर दिखाओ कि 3 बादशाह से अहमद इब्ने हंबल ने लगातार मार खाई। अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह मार खाते खाते उनकी कमरें झुक गई। उनका बेटा अब्दुल्ला कहता है कि मेरे बाप 3 बादशाहों से मार खाते खाते कमर झुक गई, और इतने दुबले और पतले थे अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह कि अगर हवा का झोंका आए तो इमाम साहब खुद ही उड़ जाए हवा के साथ। इतने दुबले पतले हो गए थे मार खाते खाते। किस लिए? खाली हक बात कहने की वजह से। नहीं तो बादशाह ने क्या कहता है, इमाम साहब हम आपको आधी सल्तनत देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आप हक बात बोलने से इनकार कर दीजिए। अहमद इब्ने हंबल ने कहा नहीं, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के मसनद पर बैठकर मुझे हक बात कहना है। 3 बादशाहों से मार खाते खाते जब आखिरी बादशाह मुतवक्कल बनता है तो इमाम साहब के पास पैगाम भिजवाता है, कहता है इमाम साहब आप मेरे घर तशरीफ लाएं और मेरे बारे में दुआ करिए। अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिस मसनद के ऊपर, जिस घर में और जिस जगह पे अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही है, उस घर में मैं दाखिल नहीं होना चाहता हूं। जाओ अपने बादशाह से कह दो मैं नहीं आऊंगा। चुनांचे बादशाह की मां दीनदार है, मुतवक्कल की मां दीनदार है, और कहती है बेटा अगर तू दुनिया का बादशाह है तो अहमद इब्ने हंबल आखिरत का बादशाह है, उसे किसी नौकरों के हाथ पैगाम मत भेजवाओ, अगर तुम्हें भेजना है तो अपने मां को भेजो। चुनांचे बादशाह की मां जब पहुंचती है, इमाम की खिदमत में पहुंचती है, कहती है इमाम साहब आप मेरे बेटे को माफ कर दो। इमाम साहब हम आपको, अब मेरा बेटा आपसे मिलने का तलब रखता है, मिलने का ख्वाहिश रखता है, इमाम साहब आप मेरे बेटे को माफ कर दीजिए और मेरे घर तशरीफ लाए। अहमद इब्ने हंबल ने कहा मेरी मां, उस दरवाजे पे मैं कैसे दाखिल हो जाऊं कि जहां का उसका आबा और अजदार, उसके बाप और दादा उस मसनद पर बैठकर लोगों के ऊपर जुल्म किए, मैं कैसे उस घर में दाखिल हूं। कहा इमाम साहब आप कम से कम बादशाह के घर नहीं आना चाहते हो तो कम से कम मेरे घर तो तशरीफ लाएं। उनका बेटा अब्दुल्ला कहता है कि 3 बादशाहों से मार खाते खाते मेरे बाप की कमर झुक गई, लेकिन चेहरे के ऊपर थोड़ा भी शिकस्त हमने नहीं देखा। लेकिन जब बादशाह की मां यह कहती है कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं तो मेरे बाप का पेशानी सलवटों से, पसीनों से भर गया। चुनांचे लोग कहते हैं, घर वाले भी कहते हैं इमाम साहब ये बुढ़िया है, इसका क्या कसूर है। इमाम साहब कहते हैं ठीक है मां, मैं तेरे घर जरूर तशरीफ लाता हूं। जब पहुंचते हैं इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह, जब बादशाह के मां के घर पहुंचते हैं तो किस्म के खाने रखा हुआ। बादशाह भी मां के घर आता है, कहता इमाम साहब खाना तनाउल फरमाइए। अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये मेरी मां खाने को उठा लो, तेरे घर में आने से पहले अहमद इब्ने हंबल रोजे की नियत किया है मैं तेरे घर का खाना भी नहीं खाऊंगा। तो जिस तरीके से कुरान ने कहा वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व आमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, इन्होंने इल्मे दीन हासिल किया तो सिर्फ अपने तक नहीं रखा, दूसरों तक भी पहुंचाए। और यही होता है कि इंसान अगर इल्मे दीन हासिल करे तो लोगों तक पहुंचाए। लेकिन
آج اس پڑھائی کو سب سے حقیر اور سب سے کمزور سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور ہر حافظ قرآن کے اللہ رب العالمین انہیں حکم دے گا اور ان کے ماں اور باپ کو سونے کا کنگن اللہ رب العالمین پہنائے گا اور انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا۔ دنیا دیکھے گی، کہے گی اللہ یہ کون سے نبی ہیں؟ اللہ کہے گا یہ نبی نہیں ہے، یہ دنیا میں میرے سب سے اونچے کتاب کی تلاوت فرماتے تھے اور اللہ رب العالمین نے اس کے وجہ سے ان کو یہ مقام دیا، یہ رتبہ دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے کتاب کے پڑھنے سے رتبہ ملتا ہے۔ آتا حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر حافظ کو اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ یہ میرے بندے تو پڑھتے جا، سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک جہاں پہنچ جا وہاں تک ساری جنت تیری ہے۔ اور قرآن کا عظمت تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ رب العالمین سب سے لاسٹ میں جہنم سے نکالے گا، سب سے لاسٹ میں، اور جب نکالے گا تو اس سے پوچھے گا میرے بندے تیری کوئی خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ کہے گا اللہ کیا خواہش ہے؟ جنت سے نکال دیا وہی تیرا احسان و کرم ہے، اللہ اس میں خواہش کی کیا بات ہے؟ اللہ کہے گا نہیں میرے بندے اگر کچھ ہے تو بتا۔ کہے گا اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ جو جہنم کے اندر جل جل کے اے اللہ میرا بدن جو ہے ایک دم کالا سیاہ ہو چکا ہے، اے اللہ تو مجھے میرا یہ جسم کے داغ جو کالا ہے اے اللہ یہ تو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا ہاں فرشتوں جاؤ میرے بندے کو جو ہے نہلا کر لاؤ۔ چنانچہ فرشتے جب نہلا کر لائیں گے اسے جنت کا دروازہ نظر آئے گا اور وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ تجھ سے میرا ایک سوال ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کیا سوال ہے بتا بندے؟ کہے گا اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس جنت کے دروازے کے پاس میں چلا جاؤں۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے نہیں جانا ہے۔ کہے گا اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، اے اللہ دنیا کے اندر اے اللہ لوگ بتاتے تھے تیری جنت ایسی ہے تیری جنت ویسی ہے، اے اللہ صرف میں تیرے جنت کے دروازے تک جانا چاہتا ہوں۔ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے پھر تو پکا وعدہ کرتا ہے دوسرا سوال نہیں کرے گا نا؟ کہے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں نہیں کہوں گا، یہ قرآن کی عظمت ہی کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العالمین اسے حکم دے گا ٹھیک ہے جا فرشتے اسے لے کر جاؤ جنت کے دروازے کے پاس۔ پھر جب وہاں پہنچے گا وہ بندہ پھر اسے جنت کے اندر پھل لٹکتے ہوئے دکھائی دے گا، جنت کا پھل۔ تو کہے گا اے اللہ ایک وعدہ تو اور میرا پورا کر دے۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے دیکھ ابھی تو وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ کہے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، اللہ تیرے شان کے اندر کس چیز کی کمی ہے تیرے خزانے میں؟ اے اللہ صرف مجھے اس پھل کھانے کا اجازت دے دے۔ اللہ کہے گا پکا وعدہ نا؟ کہے گا ہاں اللہ پکا وعدہ۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے جا۔ تو وہ جب جنت کے پھل کو توڑے گا اتنے میں اسے ہیرے اور جواہرات کے محل اسے دکھائی دیں گے۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ میرا ایک وعدہ تو اور پورا کر دے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے واقعی میں تو بہت ناشکرا ہے۔ کہے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اللہ ایک وعدہ اور تو میرا پورا کر دے۔ رب العالمین کہے گا کیا ہے وہ وعدہ؟ کہے گا اللہ اس محل تک میں جانا چاہتا ہوں جو ہیرے اور جواہرات کے محل دکھائی دے رہے ہیں، اے اللہ اس محل تک میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے جاؤ۔ فرشتے اسے لے کر جائیں گے اور جب اندر داخل ہوگا تو وہ دل ہی دل میں تمنا کرے گا کہ کاش اس محل میں میں ہوتا اور کاش اس محل میں میرے لیے ہوتا۔ دل میں تمنا کر رہا ہے، آرزو کر رہا ہے، لیکن رب سے کہہ نہیں پا رہا ہے اور کہتا ہے اگر میرا اتنا ہی نیکی ہوتا تو میں جہنم کے اندر کیوں چلتا۔ بہرحال جب فرشتہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس میرے بندے کو جنت سے ترنت نکال کر لاؤ، اور جب وہ آئے گا دھیرے دھیرے پاؤں رکھے گا، اللہ رب العالمین وہ دل میں یہ حسرت کر رہا ہے، آرزو کر رہا ہے کہ کاش یہ محل میرے لیے ہوتا۔ اللہ رب العالمین کہے گا
ये फरिश्तों मेरे बंदे के हाथ को छोड़ दो, ये महल मैंने इसके लिए बनाया है। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ये तो इतने गुनहगार बंदा था, अल्लाह इसे जन्नत के अंदर इतना आलीशान महल मिली कैसे? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा ए मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा मेरे किताब की तिलावत करता था और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे ऊंचे किताब की तिलावत की, इसीलिए अल्लाह ने जन्नत के अंदर इसे सबसे ऊंचा महल दिया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो कुरान मजीद है उसके हरूफ पे एक एक हरूफ पे 10-10 नेकी है, लेकिन रमजान मुबारक में डबल हो जाती है। लेकिन असल ये नहीं है कि कुरान कितना खत्म इंसान करे, असल ये है कि इंसान कितना समझ और बूझ के पढ़ा है। मैं अभी मुताला कर रहा था कल के दिन, तो मैंने देखा कि हदीस में आता है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद कहते हैं कि हमें सिर्फ सूरे बकरा सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, सहाबा कहते हैं हमें 4-4 साल लग जाती थी। आज तो 4 साल में आदमी कारी बन के निकल जाता है। तो कुरान असल पढ़ना असल नहीं है, कुरान को समझ और बूझ के पढ़ना असल है। नहीं तो कुरान है अरबी जबान है और हमारी जुबान उर्दू है, हिंदी है। तो इसी तरीके से कुरान जितना समझकर और माने और मतलब के साथ हम पढ़ेंगे उतना सबसे ज्यादा सवाब है। जैसे एक इंसान अगर कुरान मजीद रमजान के अंदर अगर 5 खत्म करता है और एक इंसान 1 खत्म करता है, जो 1 खत्म करता है वो समझ और बूझ कर रहा है, पढ़ रहा है, तो ज्यादा सवाब का मुस्तहिक कौन है? हर इंसान यही कहेगा जो ज्यादा पढ़ा है वो सवाब का मुस्तहिक है। लेकिन नहीं, यहां मामला बदल जाता है। जो समझ और बूझ के पढ़ता है उसे सबसे ज्यादा सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान कुरान मजीद पढ़ने में तेज है, माहिर है, वो कल कयामत के दिन नेक और बुजुर्ग फरिश्तों के साथ होगा। और जो इंसान कुरान को पढ़ता है लेकिन अटक अटक के पढ़ता है, ये नहीं है कि पढ़ता है लेकिन अटक अटक के पढ़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बंदा भी कल कयामत के दिन नेक और बुजुर्ग फरिश्तों के साथ खड़ा होगा। तो कुरान मजीद का अपना अपना मकाम और मर्तबा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मजदवा कौनुम मिन बुयूतिल्लाहि व यतलूना किताबल्लाहि व यततारसूना बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनतु व बस्सुमुर रहमतु व हफ़्फ़तुल मलाइकतु ज़करहुमुल्लाहु मिन इंदा। ये बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी कहते हैं जिस घर के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के किताब की तिलावत की जाती है, उस घर को फरिश्ते अपने रहमत से उस घर को छिपा लेते हैं और उस घर को फरिश्ते अपने परों से छिपा लेते हैं। और ज़करहुमुल्लाहु मिन इंदा, और अल्लाह ताला जो है उन लोगों का जिक्र, यानी जो कुरान पढ़ रहा है उनका जिक्र अल्लाह अपने यहाँ करता है। अब अपने यहाँ से मुराद क्या है कि रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों के पास उस बंदे का जिक्र कर रहा है। और जो कुरान पढ़ा जाएगा वहां अल्लाह की सकीनत नाजिल होगी। हदीस में आता है कि हुज़ैल इब्ने अयास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ रहे हैं और उनके बगल में घोड़ा बंधा हुआ है और घोड़े के बगल में जो है उनका बच्चा लेटा हुआ है, सोया हुआ है। वो सहाबी कहते हैं कि जब मैं कुरान को पढ़ रहा हूं तो देख रहा हूं आसमान से एक नूर चमक रहा है, नूर धीरे धीरे वो जमीन की तरफ आ रहा है। फिर इतने में जब वो नूर देखकर, वो रोशनी देखकर मेरा घोड़ा बिदक रहा है, कूद रहा है। फिर मैं कुरान को बंद किया कि कहीं घोड़ा मेरे बेटे को रोक न डाले। फिर साहबी रसूल कहते हैं मैंने अपने बच्चे को बगल में किया, बेटे को बगल में किया, फिर मैंने कुरान को पढ़ना चालू किया। फिर घोड़ा कूद रहा है, बिदक रहा है और फिर वो नूर जो थी, रोशनी थी, धीरे धीरे आसमान जमीन की तरफ आ रही है। साहबी कहते हैं फिर मैंने कुरान को बंद किया, फिर अपने बच्चे को उठा लिया। मसलन 3 मरतबा 3 वाकया उनके साथ पेश आया। सुबह हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल आज की रात मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अल्लाह के रसूल मैं कुरान को पढ़ रहा हूं तो वो आसमान से एक नूर रोशनी चमक रही है, जमीन के ऊपर आ रही है और वो रोशनी को देखकर मेरा घोड़ा बिदक रहा है, कूद रहा है, लेकिन बगल में मेरा बच्चा बैठा सोया हुआ है।
अल्लाह के रसूल इसीलिए मैंने कुरान को बंद किया। अल्लाह के रसूल 3 वाकया ये चीज पेश आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे साहबी, काश तूने कुरान को बंद ना किया होता, तेरे उस कुरान को सुनने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते जमीन पे आ रहे थे तेरे कुरान को सुनने के लिए। और ए मेरे साहबी, अगर तू कुरान को बंद नहीं करता तो देखता मदीना के एक एक बच्चा उन फरिश्तों से मुसाफा करता। तो ये कुरान की अजमत है, कुरान की कशिश है। घर बैठे नहीं, मेहनत करने से होता है। घर बैठे इंसान को रोजी नहीं मिलती है, उसमें भी अल्लाह कहता है फैज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, कि इंसान घर बैठे तो इंसान को रोजी नहीं मिलता है। नमाज पढ़ चुको, भागो मस्जिद से, कहां जाओ रोजी तलाश करो, रोजी ढूंढने से मिलता है। तो हम कुरान और हदीस को अगर हम मजबूती से पकड़ेंगे तो हमारा निजात है। हदीस में आता है कि 2 भाई साथ में इस्लाम कबूल किए, ये सही बुखारी की रवायत है कि 2 भाई साथ में इस्लाम कबूल किए और एक भाई जो है वो दीन के कामों में बहुत आगे रहता था, दीन के कामों में हमेशा आगे रहता था। तो वो भाई शहीद हो गया, मतलब जंग के अंदर शहीद हो गए वो साहबी रसूल। ये हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है। हजरत तलहा कहते हैं कि मैं रात के अंदर ख्वाब देखा कि उसका भाई जो है, जो दीन के कामों में बहुत आगे रहता था, वो शहादत की मौत पाया, और जो दीन के कामों में सुस्त रहता था, दीन के कामों में थोड़ा पीछे रहता था, 1 साल बाद वो भी इंतकाल हो गया। तो तलहा कहते हैं मैंने ख्वाब देखा कि जन्नत एक फरिश्ता आता है और कहता है जो दीन के काम में वो सुस्त रहता है और जो 1 साल बाद में उसका इंतकाल हुआ है और जो शहीद हुआ है साहबी रसूल जिनका शहादत हुई है और दीन के कामों में आगे रहते हैं, फरिश्ता आता है कहता है कि ये मेरे भाई, जो पहले इंतकाल हुआ है, जो दीन के कामों में सुस्त रहता है, उससे कहा कि चलो तुम्हारा नंबर आ चुका है, तुम जन्नत में चलो। और जो शहीद हुआ है और जो दीन के कामों में आगे रहता है साहबी, कहते कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, तुम अभी यहीं पर रहो। तलहा कहते हैं कि मेरी आंख खुल गई, सुबह हुई, मैं अल्लाह के नबी के पास अल्लाह के नबी से ये ख्वाब का जिक्र कर रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे साहबी, क्या उसने अपने उम्र के अंदर 1 साल जो उसे मिला था, जो दीन के मामले में सुस्त था, उसे क्या 1 साल एक्स्ट्रा मिला है? कहा अल्लाह के रसूल। कहा कि रमजानुल मुबारक उसने पाया है? कहा उसने अपने रब को राजी कर लिया है, उस 1 साल के अंदर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर लिया है और उसने लैलतुल कद्र को पा लिया है। तो ये मेरे साहबी, वो लैलतुल कद्र को पा लिया है, इसीलिए उसका मकाम और मर्तबा बुलंद हो गया है। तो ये कुरान की अजमत है। और हमने एक आयत करीमा जो पढ़ी है, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि इंसान रोजा रखकर भूखा प्यासा रहकर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगता है तो क्यों नहीं उसकी दुआ कबूल होती है। अल्लाह ने देखो पहले ही में कहा शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यहां पर भी रमजान का जिक्र किया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरमियान में दुआ का तज़किरा किया, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, और फिर इसके तुरंत नीचे उहिल्ला लकुम लैलतस सियामी रफस। अल्लाह का कहने का मतलब क्या है? मैन तो असल बात यह है कि इंसान अगर भूखा प्यासा रहकर अगर रब्बुल आलमीन से दुआ मांगता तो क्यों नहीं उसकी दुआ कबूल होती है। आज मुसलमान क्यों जलीलो खार रुसवा है? 57 ममालिक होने के बाद आज मुसलमान क्यों जूते खा रहे हैं? क्योंकि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस वक़ूद को तोड़ दिया है कि जो हम अल्लाह से वादा करके आए थे कि अल्लाह तेरे अलावा कोई हाजत रवा नहीं है, अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है मुश्किल कुशा, कोई नहीं है बिगड़ी को बनाने वाला। हमने अल्लाह के उस वक़ूद को तोड़ दिया, और जब हम अल्लाह के वक़ूद को तोड़ दिए तो रब्बुल आलमीन भी कहता है जुरिबत अलैकुमुल ज़िल्लतु वल मस्कनतु, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के वक़ूद को तोड़ दोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के वादे को तोड़ दोगे,
तो तुम्हें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जलीलो खार रुसवा कर देगा। नहीं तो सहाबा के अंदर देखिए, मैंने अभी रात के अंदर खुतबे में मैंने बताया है कि सहाबा के पास क्या था। रूम के बादशाह से जंग हो रही है, यहां सहाबी मदीना के अंदर कोई फौज ही नहीं है। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फारूक आजम के पास अरीजा लिखते, खत लिखते हैं, ये अमीरुल मोमिनीन मदीना से कुछ फौज, कुछ कमांडर हमारे पास भेज दो। यहां दुश्मन 5 लाख दुश्मन है और मुसलमान की तादाद कितनी है? 30,000 मुसलमान है। जब कासिद खत को लेकर पहुंचता है, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशा के नमाज के बाद बैठे हैं और कासिद पहुंचता है। जब खत को पढ़ते हैं, तमाम सहाबा इकराम आपस में हैरान और परेशान हैं, लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पे एक भी शिकस्त मौजूद नहीं है। हजरत उमर फारूक मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कासिद तू बैठ जा, खालिद ने मुझसे सिपाही मांगा है, खालिद ने मुझसे फौज मांगा है, तू बैठ जा और मैं फजर के वक्त में तुम्हें ऐसी फौज को भेजूंगा कि अगर पूरी कायनात मिल जाए उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। साहबा हैरान परेशान है कि ये अमीरुल मोमिनीन कहां से फौज लाएंगे। मदीना के अंदर वो बूढ़े मौजूद हैं 80-90 साल के, कि जिनकी कमरें झुक चुकी है, जिन्हें तलवार उठाने की ताकत नहीं है, और मदीना के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे मौजूद हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु किसको भेजेंगे? चुनांचे फजर का नमाज पढ़ाए और फजर के नमाज के बाद हजरत उमर फारूक कहते हैं कि तुम मस्जिद तलहा और जुबैर मौजूद हैं? तलहा और जुबैर कहते हैं हाँ अमीरुल मोमिनीन मैं हाजिर हूं, क्या बात है? कहा तुम जाओ अपने जंग के सामानों को पहन लो, जंग के हथियारों को पहन लो, मैं तुम्हें खालिद इब्न वलीद के पास भेज रहा हूं, हिजबुल्लाह के पास भेज रहा हूं, अल्लाह के गिरोह के पास भेज रहा हूं। चुनांचे दोनों साहबा जब जाते हैं और जब अपने अपने जंग के सामान को, हथियारों को पहनकर जब पहुंचते हैं, तो साहबा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ये 2 आदमी से क्या होगा? वहां तो दुश्मन 5 लाख की तादाद दुश्मन है, ये 2 आदमी से क्या होगा? कहा साथियों तुम 2 आदमी को कमतर समझते हो। मैंने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना था कि जिस जंग के अंदर तलहा और जुबैर मौजूद हो, पूरी कायनात मिल जाए, कोई इन्हें तलहा और जुबैर को शिकस्त नहीं दे सकता है, और तुम कहते हो 2 आदमी से क्या होगा? कहा अमीरुल मोमिनीन मैं तो ऐसे ही पूछ लिया। कहा इसलिए कि तलहा वो शख्स है कि जब मैदान ओहद के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तीरों की बारिश हो रही थी, तो तलहा अपना सीना लेकर नबी के सामने खड़ा हो गया था और इमाम कायनात ने कहा ये तलहा तू बैठ जा। तलहा ने कहा अल्लाह के रसूल जब तक मेरे सीने के अंदर एक भी तीर खाने की ताकत मौजूद है, ए अल्लाह के रसूल तब तक मैं खाऊंगा तीर, और ए अल्लाह के रसूल अगर मेरा पूरा सीना तीर से भर जाएगा तो अल्लाह के रसूल मैं अपने पुश्त को पीछे कर लूंगा। इमाम कायनात कहते हैं तलहा तुझसे मोहम्मद राजी है, मोहम्मद का रब तुझसे राजी है, ए तलहा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे जन्नत देकर रहेगा। और जुबैर तो वो जुबैर थे कि जब आपके ऊपर यहूदियों ने सब खून मारने का इरादा कर लिया, तो नबी कायनात कहते हैं कौन है जो मेरे खेमे की, मेरे घर की हिफाजत करे? कल जन्नत के अंदर उसके महल की हिफाजत, उसके घर की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के जरिए कराएगा। तो जुबैर उठे और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैं आपके खेमे की मैं हिफाजत करूंगा, और अल्लाह के रसूल जब तक कोई काफिर मेरे लाश को रोद नहीं देगा तब तक आप तक नहीं पहुंचेगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं जुबैर तुझसे मोहम्मद राजी है, मोहम्मद का रब तुझसे राजी है। और जब ये दोनों जलीलुल कदर सहाबा पहुंचते हैं जंग के मैदान में, तो हदीसों में आता है कि 75,000 लाशों को दुश्मन छोड़कर मैदान भाग गए, सिर्फ 2 सहाबा से। 2 सहाबा से पूरे लश्कर के ऊपर जान आ गई, पूरे लश्कर के अंदर जान पैदा हो गई। आज हम अरबों खरबों के तादाद में होने के बावजूद, 57 ममालिक होने के बावजूद हम क्यों जूते खा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? हमने अल्लाह के वकूद को पूरा नहीं किया। अगर हम अल्लाह के वकूद को पूरा करते तो जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के सहाबा के ऊपर मदद ही मदद की है, तो अल्लाह हमें भी वैसे ही मदद करता, हमारा भी। तो वही जा साल का इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह कहता है जब मेरा बंदा मुझसे दुआ मांगता है फइन्नी करीब, मैं उसके करीब होता हूं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप
से जब मेरे बंदे पूछे कि अल्लाह कहाँ है तो कह दो फ़इन्नी करीब, अल्लाह तुम्हारे करीब है। और एक जगह कहा गया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे सहरक से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबकी दुआ सुनी, जितने नबी आए और सहाबा साहबिया सबकी दुआ अल्लाह सुनता है, हमारी दुआ क्यों नहीं सुनता है? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिए गए तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ए आदम उस दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन शैतान ने बहकाया, चले गए, फिर उन्हें जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं, कहते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मेरे किबरियाई की कसम है, आदम और हव्वा के हाथ अभी दुआ से नीचे नहीं उतरे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम और हव्वा दोनों को माफ कर दिया, बख्श दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में कोई मांगने वाला तो हो। हम अकीदा ये रखते हैं मस्जिद से नहीं मिला दरगाह से मांगेंगे, दरगाह से नहीं मजार से मांगेंगे, तो कहां से हमारी दुआ कबूल होगी बताओ? हदीसों में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम, जो उनको वो बात कहने का हुक्म ही नहीं मिला था, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम कह बैठे, कहते हैं अल्लाह तू मेरे बेटे को बचा ले, इन्ना अबनी मिन अहली, अल्लाह तू मेरे बेटे को बचा ले, अल्लाह तूने वादा किया था कि मैं तेरे अहल को बर्बाद नहीं होने दूंगा, अल्लाह तू मेरे बेटे को बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है नूह इन्नहु लैसा मिन अहली, ए नूह जो रब के तौहीद को नहीं मानता है, ए नूह जो तेरे नबूवत को तस्लीम नहीं कर रहा है, काय का बेटा है, इन्नहु लैसा मिन अहली, वो तेरे अहल वयाल से नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जो पूरी जिंदगी दुआ मांग रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बुढ़ापे के वक्त में सुना और कहा फबस्सरनाहु बिगुलामिन हलीम, ये इब्राहिम हम तुम्हें नेक बेटा देंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कोई मांगने वाला तो हो, अल्लाह सबकी सुनता है। वही इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जो नमरूद आग जला रखे हैं, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। यहां फरिश्ते आते हैं, कहते हैं इब्राहिम अगर तुम कहो तो इस आग को बुझा दूं, ये इब्राहिम इस आग को ठंडा कर दूं। इब्राहिम पूछते हैं कि इस मेरे हाल को मेरे रब को पता है? कहा हां अल्लाह को पता है। कहा फिर जाने तो रब्बे जुल जलील जाने, मेरा बंदा खलील जाने। मुसलमानों तुम वसीले की बात करते हो, यहां वसीला इब्राहिम के पास चलकर आ रहा है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदा फरिश्तों तक के वसीला नहीं लिया। हुक्म होता अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, कुल्ला या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, या नारू ए आग तू मेरे बंदे इब्राहिम के ऊपर ठंडी हो जा। और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने ठंडी नहीं कहा था, कहा बरदन व सलामन अला इब्राहिम, कि सलामती के साथ मेरे बंदे इब्राहिम के ऊपर ठंडी हो जा। तो ये सहाबा इकराम ने या नबियों ने किसको पुकारा अपने परेशानियों में? खुद अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कि बदर की मैदान है, अल्लाह के नबी 16 रमजान को रात के अंदर दुआ करते हैं, रब के दरबार में सजदा सुजूद हो जाते हैं और कहते हैं अल्लाह तू उस वादे को पूरा कर दे, अल्लाह इन काफिरों को जलीलो खार रुसवा कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं रात में। और बदर के मैदान में देखिए कि 1000 कुफ्फार मुशरिकीन हैं और मुसलमान कितने हैं? 313। उसमें औरत बूढ़े बच्चे मर्द सब जोड़कर 313 मुसलमान हैं। वो हिजरतों के सताए हुए हैं, वो मुहाजिर हैं, आबाई वतन को भी छोड़े हुए हैं। वो 313 लड़ने के लिए कौन आए हैं? बड़े बड़े जर्नेल, बड़े बड़े कर्नेल 313 से लड़ने आए हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काफिरों के तादाद को देखते हैं तो कहते हैं मेरे साहबा तुम में से किसी और को हटना है तो हट जाओ। एक साहबी आगे बढ़े, कहते हैं अल्लाह के रसूल हम सब हट जाएंगे तो आप अकेला क्या करोगे? इमाम कायनात कहते हैं कि अगर सब हट जाओगे तो मैं अकेला अल्लाह के दुश्मनों के ऊपर गालिब आ जाऊंगा।
फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साहबी आगे बढ़ते हैं, हजरत साद रजी अल्लाह ताला, साद इब्ने वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु, कि वो साद हैं कि दुनिया अपने माँ बाप को कुर्बान कर रही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ बाप को कुर्बान कर रहे हैं साद के ऊपर। साद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह को नहीं देखे ईमान लाए। ए अल्लाह के रसूल, हम जन्नत को नहीं देखे ईमान लाए। ए अल्लाह के रसूल, हम जहन्नम को नहीं देखे ईमान लाए। ए अल्लाह के रसूल, हम फरिश्तों को नहीं देखे ईमान लाए। ए अल्लाह के रसूल, अगर आप कहें इस पहाड़ी से छलांग लगा दो, तो अल्लाह के रसूल, हम आपसे चूचिरा भी नहीं पूछेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा का ये तेवर देखते हैं, ये जज्बा देखते हैं, अपने सर को सजदे में रख देते हैं और रब्बुल आलमीन के दरबार में सजदा सुजूद हो जाते हैं और कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन तहलिकल हाज़िहिल असाबत लम तौबत लिबादल यौमा कत्तु। ए अल्लाह, यही मुट्ठी भर जमात है जो तेरे दीन के लिए, तेरे इस्लाम के लिए अपने जान का नजराना पेश करने आए हैं। ए अल्लाह, इन काफिरों को जलीलो खार रुसवा कर दे। ए अल्लाह, ये 313 मेरी कुल पूंजी है। ए अल्लाह, जिन्हें लेकर मैं तेरे सामने हाजिर हुआ हूं। ए अल्लाह, तू इनकी मदद फरमा। सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने जब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदर के मैदान में इतना रोते हुए देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां सजदा किए थे, वहां की आंसुओं ने अपना रास्ता बना लिए थे। और कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह के रसूल, गम मत करो। अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा, रायगा नहीं करेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी बदर के मैदान में जिब्रील को भेजता है और अल्लाह के रसूल कहते हैं, ए अबू बकर, हाजा जिब्रील, हाजा जिब्रील। ए अबू बकर, जिब्रील का अल्लाह रब्बुल आलमीन नुज़ूल कर रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन 313 को ये पैगाम सुना दो कि ये 313 आज के बाद एक भी नेक काम ना करे, एक भी नेक काम ना करे। सिर्फ बदर में आ गए हैं और ये एक भी नेक काम ना करें, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें जन्नत लिख कर अता फरमाया है। तो ये किस तरीके से उन्होंने अपने आप को, अपने तौहीद को मजबूत किए। वल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन। अल्लाह ने कहा कि जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म से बचा लिए, यानी शिर्क से बचा लिए, असल वही लोगों के लिए अमन है, उन्हीं लोगों के लिए सुरकुरी है और उन्हीं के लिए वही जन्नत के मकीन बनने वाले हैं। तो हम और आप यही समझे कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन फला फला की सुनता, हमारी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबिया हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा कि जमाने जाहिलियत के अंदर कोई शख्स अगर कह देता था कि तू अपने बीबी को कि तू मेरी माँ के तरीके से हराम है, तो वो अपने माँ के तरीके से उस अपने बीबी की खिदमत किया करता था। बहरहाल उनके शौहर ने भी अपने बीबी को कह दिया, तू मेरे माँ के पीठ के तरीके से हराम है। चुनांचे जब वो औरत आती है, सहाबा इकराम के पास आती है, कहती है, मेरे शौहर ऐसा मत कहो, मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मैं कहां जाऊंगी। कहा नहीं, जो कह दिया कह दिया। बहरहाल वो सिद्दीक़ अकबर के पास आती है, फारूक आजम के पास आती है, कहती है, साहबा की जमात, मुझे मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। साहबा कहते हैं, अभी तो अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, हम कौन होते हैं दीन में रास्ता निकालने वाले। ए बीबी, मेरे पास तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। हदीस में आता है कि वो औरत फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती है और हुजरे आयशा का दरवाजा खटखटाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाते हैं दरवाजे के पास, कहते हैं, ए खौला, क्या हुआ है? कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर ने मुझे माँ के तरीके से हराम कर लिया है। अल्लाह के रसूल ने कहा, बीबी, तब फिर तू अपने शौहर के लिए माँ के तरीके से हराम हो गई। कहा, आका, यूं ना कहिए, अल्लाह के रसूल, आपके दरवाजे से अगर रास्ता नहीं निकलेगा तो एक इमाम कायनात फिर हम कहां जाएंगे। अल्लाह के रसूल, मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अल्लाह के रसूल, ना मेरे माँ है, ना बाप है, ना भाई है। अल्लाह के रसूल, मेरे कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल, आप कोई रास्ता निकालो। अल्लाह के रसूल कहते, बीबी, मेरे पास तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के कांधा पकड़ कर उठा देते हैं, अभी पर्दा फर्ज नहीं हुआ है, और कांधा पकड़ कर उठा देते, कहते, बीबी, मेरे पास तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। वो औरत सामने मस्जिद नबी देखती है और जाती है, वजू बनाती है
اور 2 रकात नवाफिल नमाज पढ़ती है। कहती है अल्लाह मोहम्मद की चौखट बंद हो गई। वो औरत बरजस्ता ये कहती है कि ये मोहम्मद आपकी चौखट बंद हो गई है, लेकिन ये मोहम्मद रब की तो चौखट खुली है। वो जाती है मस्जिद नबवी में 2 रकात नमाज पढ़ती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो रो कर दुआ करती है। कहती है अल्लाह मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ए अल्लाह मैं कहां से अपने बच्चों को कमा के खिलाऊंगी, ए अल्लाह तू मेरे लिए रास्ता निकाल दे। यहां खौला दुआ कर रही हैं, वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सूरह मुजादलात नाजिल होती, कद समी अल्लाहु कौलन लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तस्तकी इलल्लाह। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत आपसे लड़ रही थी, झगड़ रही थी अपने शौहर के बारे में, अल्लाह ने उस औरत के लिए रास्ता निकाला है कि कोई शौहर अगर अपने माँ के तरीके से अपने बीवी को हराम कर ले तो उसे चाहिए कि 60 रोजे रखे, या एक गुलाम आजाद करे, या 60 मिस्कीन को खाना खिलाए। जैसे मसलन बुखारी की रवायत में आता है, एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आता है, कहता है अल्लाह के रसूल मैं हलाक हो गया हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल मैं रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कफारा अदा करो। फिर कहा अल्लाह के रसूल क्या है कफारा? कहा कि या तो 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ, या एक गुलाम को आजाद करो, और 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ, या तो एक गुलाम आजाद करो, या 60 रोजे रखो। कहा अल्लाह के रसूल एक रोजे की हालत यह थी कि मैं बीवी से हम बिस्तर हो गया, अल्लाह के रसूल मैं कहां से 60 रोजे रखूंगा? अल्लाह के रसूल ने कहा एक काम करो, फिर 60 मिस्कीन को खाना 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। कहता है अल्लाह के रसूल मेरे घर में खुद खाने के लिए नहीं है, अल्लाह के रसूल मैं कहां से मिस्कीन को खिलाऊं? नबी कर साहब तू ये आजाद कर। अल्लाह के जिंदगी में ज्यादा गुलामी करते आए हैं, अल्लाह के रसूल मैं कहां से गुलाम करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा फिर अपने भाई की मदद करो। हदीस में आता है कि साहबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन जो है 1 खजूर 2 खजूर 3 खजूर 4 खजूर अपने हैसियत के मुताबिक साहबा खजूर देते गए। हदीस के अल्फाज हैं कि टोकरी भर गया, और अल्लाह के रसूल ने कहा एक काम कर, ले तू जा अपने कबीलों में बांट दे, कुंबा में बांट दे, यही तेरा कफारा है। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं उस अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि अल्लाह के रसूल मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा एक काम कर, जा तू खुद खा ले, अपने बीवी बच्चों को खिला दे, यही तेरा कफारा है। आता है हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया कि अल्लाह हमारा सुनेगा क्यों नहीं, हम मांगे तो अल्लाह से। हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया आता है, उम्मे अय्यूब का वाकया कि तमाम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के लिए नबी का चौखट थाम के रखा है, लेकिन उम्मे अय्यूब कहती हैं कि तमाम लोग नबी के चौखट को थाम कर रखा है, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के चौखट को थाम कर रखूंगी। अल्लाह के नबी से कहा गया, बड़े बड़े सरदाराने कुरैश कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आप मेरे घर मेहमान बन जाइए, और उसी मदीना के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे मामू भी रहते थे। कहते हैं अल्लाह के रसूल आप मेरे घर तशरीफ लाएं। अल्लाह के रसूल कहते हैं नहीं, इस ऊँटनी के लगाम को जिब्रील अमीन ने पकड़ा है, और जहां अल्लाह के हुक्म से जिसके दरवाजे पे बैठ जाएगी मैं उसी का मेहमान बनूंगा। इतने में जब उम्मे अय्यूब सुनती हैं तुरंत जाती हैं और 2 रकात नमाज पढ़ती हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में सजदा सुजूद हो जाती है। कहती है अल्लाह अगर तू मेरे इस गरीब घर को अगर तू नबी का मेहमान बना दे, मुझे नबी का मेजबान बना दे, तो अल्लाह तेरा क्या बिगड़ जाएगा? ए अल्लाह तू आज इस घर को नबी का मेहमान बना दे। हदीस पाक में आता है कि फिर वो ऊँटनी जो थी, नबी की ऊँटनी, अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर से आगे बढ़ गई। उम्मे अय्यूब के दुआओं में रवानगी आ जाती है। कहती है अल्लाह अगर ऊँटनी मेरे घर के सामने से निकल सकती है, गुजर सकती है, तो अल्लाह मेरे घर के सामने बैठ क्यों नहीं सकती है? अल्लाह आज तू गरीब घर को नबी का मेहमान बना दे, तो अल्लाह तेरा क्या बिगड़ जाएगा? हदीस पाक में आता है कि वो ऊँटनी फिर दोबारा पीछे आई और अपने सर को जो है हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में रख देती है। अबू अय्यूब अंसारी के कदमों में रख देती है अपने सर को। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं और कहते हैं अबू अय्यूब अल्लाह ने तुम्हें मेरा मेहमान बना दिया है,
مجھے جو ہے آپ کا مہمان بنا دیا ہے. اے ابو ایوب، پھر میرے آپ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سامان تھا، کہا اے ابو ایوب اونٹنی سے اتار لو، اپنے گھر میں رکھو. ابو ایوب جاتے ہیں اندر، کہتے ہیں کہ میرے بیوی بس کرو، اللہ رب العالمین آپ کے دعا کو قبول کر لیا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اے ابو ایوب میں آپ کا مہمان بن چکا ہوں. ام ایوب کہتی ہیں اللہ کے رسول، اے میرے شوہر، اللہ کے رسول سے کہہ دو کچھ لمحہ رک جائے. یہ جو 2 رکعت میں نے نفل نماز پڑھی تھی وہ رب سے نبی کو مانگ رہی تھی، اور اب 2 رکعت وہ شکرانے میں مجھے ادا کرنا ہے. اللہ کے رسول سے کہہ دو 2 منٹ رک جائیں، اور میں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کا جو اللہ نے مجھے نبی حاصل کر دیے، نبی کو مہمان بنا دیے ہیں، میں اس شکرانے میں اللہ کے رب العالمین کے سامنے سجدہ سجود ہو جاؤں. پھر 2 رکعت نوافل نماز پڑھتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین صحابہ کا بھی سنا، صحابیہ کا بھی سنا، اور نبیوں کا سنا. ہماری کیوں نہیں سنتا ہے؟ کیونکہ ہمارے عبادتوں کے اندر کوئی کھوٹ ہے. نہیں تو رمضان مبارک جیسے بابرکت مہینے میں کہ جس کا قبولیت کا شرط ہے، روزدار بندہ جب تک افطار نہ کر لے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی کوئی بھی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. مسجد میں دعا قبول ہوتی ہے، خانہ کعبہ میں دعا قبول ہوتی ہے، صفا پہ دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے. یہ سب مقام مقدسہ ہیں. یہ ہم چھوڑ کر ادھر ادھر للو پنچو کے پاس بھاگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کے عذاب سے بچائیں گے. اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں کہتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل سیقول ما اجبتم. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے نبیوں کو لائن سے کھڑا کروں گا اور نبیوں سے پوچھوں گا یوم یجمع اللہ الرسل، اے رسولو، اے پیغمبرو، تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تم بھی حساب دو. تو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جب انبیاء رسول حساب کتاب دینے کے لیے تیار ہیں اور اللہ کہتا ہے ہم اپنے نبیوں سے حساب کروں گا، تو مسلمانوں ہماری تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہماری تمہاری کیا اوقات ہے کہ کوئی دوسرا ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو سید الملائکہ جبریل ہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کہ میدان محشر کے دن جو سید الملائکہ جبریل ہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، یہ جبریل جو سید الملائکہ ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی عدالت میں وہ بھی کانپ رہے ہوں گے. تو ہماری تمہاری حیثیت ہی کیا ہے مسلمانوں کہ کوئی دوسرا ہمیں اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ سب سے پہلے ہم اپنے عقیدے سے توبہ کریں، برے عقیدوں سے، اور اللہ کے توحید کے اوپر آ جائیں. اللہ کے توحید کے اوپر جب ہم آئیں گے تو اللہ ہماری بھی سنے گا. ایک واقعہ بتاتا ہوں، یوسف الدین عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ کوئی بھی عالم دین اگر ان کا واقعہ لکھا ہے تو ان کا واقعہ جلی قلم کے ساتھ لکھا ہے. مصر کے مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور خطبوں کے درمیان نمازی حضرات انہیں ایک رکا دیتے ہیں، پرچی دیتے ہیں، اور امام صاحب رکا کو پڑھ کر پرچی کو جیب میں رکھ لیتے ہیں. رکا کو جب نماز سے فارغ ہوئے امام صاحب تو نمازیوں نے کہا امام صاحب آپ کیا بادشاہ سے ڈر گئے؟ کہا نہیں، کیا بات ہے؟ کہا امام صاحب یہاں کا بادشاہ ہم لوگوں کے اوپر جبرن ظلم کر رہا ہے، ہم لوگوں کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہا ہے، کاروباری حالت بہت خراب ہے. امام صاحب بادشاہ ہم لوگوں کے اوپر جبرن ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہا ہے. امام صاحب آپ اس کے بارے میں ضرور جمعے کے خطبے میں بادشاہ آیا تھا اور ہم آپ کو اسی لیے روکا دیے تھے کہ اس کے بارے میں آپ کچھ وضاحت کریں. امام محترم کہتے ہیں کہ جب تک اس چیز کی میں تحقیق نہیں کر لوں گا میں بادشاہ سے نہیں پوچھوں گا. کہا امام صاحب آپ نمازی حضرات سے پوچھ لیجئے کہ یہاں کا بادشاہ جبرن ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہا ہے، کاروباری حالت خراب ہے اس کے باوجود بھی ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہا ہے. یوسف الدین عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھا کر اپنے گھر نہیں گئے، سیدھے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہتے ہیں، اس کے نوکر کہتے ہیں امام صاحب کیا ہوا؟ کہا جا اپنے بادشاہ سے کہہ دے کہ تجھ سے ملنے کے لیے یوسف الدین عبدالسلام ملنے آیا ہے. جب بادشاہ کے پاس پیغام پہنچتا ہے کہ یوسف الدین عبدالسلام وقت کے بادشاہ ملنے آئے ہیں تو بادشاہ دوڑ کر ایک مولوی کے لیے، ایک عالم کے لیے استقبال کے لیے دوڑ کر آتا ہے، پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے.
यूसुद्दीन अब्दुल सलाम के इस्तकबाल के लिए दौड़ के बादशाह आ रहा है, पाँव में चप्पल भी नहीं है। आता है, कहता है इमाम साहब क्या हुआ? कहते हुआ तो कुछ नहीं है, मैंने सुना हूं कि तू लोगों के ऊपर इस बेरोजगारी के दौर में तू लोगों के ऊपर क्यों टैक्स पे टैक्स लगा रहा है? कहा इमाम साहब वो टैक्स मैंने अपने लिए नहीं लगाया हूं, खजाने में पैसा ही नहीं है और वो टैक्स मैंने अपने लिए नहीं लगाया हूं। इमाम साहब कुफार से जंग लड़ना है, मुशरिकीन से जंग लड़ना है इमाम साहब, इसीलिए मैंने जो है लोगों के ऊपर टैक्स लगाया। इमाम मुहतरम जवाब देते हैं कि बादशाह तू झूठ बोल रहा है। और बादशाहों की यही आदत है कि जब इनके हाँ में हाँ कहो तो इज्जत है, और जैसे इनके खिलाफ हुए तो इज्जत छिन जाने का खतरा। कहा अभी इमाम कह रहा है, और जब इमाम कहते हैं कि तू झूठ बोल रहा है तो कहता मौलवी साहब खजाने का मालिक तू, मैं हूं कि तू है? कहा नहीं, खजाने का मालिक तू है, लेकिन तू जो कहता है खजाने में पैसा नहीं है, तू इसलिए झूठ बोल रहा है कि तेरे जो दरबारी हैं, तेरे जो वजीर हैं, सिपह सालार हैं, ये सोने और चांदी से जड़ा हुआ लिबास पहने हुए हैं, और जब तक तू बाजार में इसे फरोख्त कर बेच और उसके बाद अगर पैसा कम पड़ेगा जंग के लिए तो मैं चंदे का मैं फतवा दूंगा। कहा नहीं, मैं तो लगाऊंगा। कहा अगर तू लगाएगा तो जिस गांव में, जिस मसनद में, जिस घर पे अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही है, यूसुद्दीन अब्दुल सलाम वहां एक सेकंड भी नहीं रुकेगा। कहा फिर रोका कौन है? जाओ भागो, क्योंकि बादशाह की तो मतलब हल हो गई। कहा रोका कौन है? जाओ। यूसुद्दीन अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह जब पहुंचते हैं, थोड़ा वाकया है, ठीक है, चलो इसी के साथ मैं अपने वाकये को खत्म करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम जमी मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए।